اور اب میں اس ورکرز کنونشن کے صدر جلسہ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب سید منور حسن صاحب، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، گرتی ہوئی دیواروں کو، امریکہ کے یاروں کو، بھارت کے یاروں کو، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، جناب سید منور حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، صدق اللہ العظیم۔ برادر گرامی قدر حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، حضرت مولانا حنفی صاحب، برادرم شیخ رشید صاحب، دیگر مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور مستقبل کی امیدوں، نوجوانوں، مجھے خوشی ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کے ورکرز کنونشن میں تمام جماعتوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت فرمائی ہے، جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے، مقصد کے ساتھ وابستگی اور لگن کا عنوان ابھارا ہے، قدموں میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے دل و دماغ کے اندر یکسوئی اور سکون اور سکینت پیدا کرنے کے لیے، انشراح صدر کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے، نصرت اور تائید طلب کرتے ہوئے، صبر کا کوہ گراں اور تحمل کی چٹان بنتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کارکنوں نے جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، اپنے ضعف کو قوت کے اندر تبدیل کرنے، اپنی کمزوری کو طاقت کے اندر بدلنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اور پھیلا کر بات کی ہے، بزبان حال بات کی ہے، بزبان قال بات کی ہے، سب نے مل جل کر بانداز سرگوشی بات کی ہے، بآواز بلند ڈنکے کی چوٹ پر جھنڈوں کو لہرا کر، جھنڈوں کو نیچے کر کے بات کی ہے کہ مولا کریم ہماری منزل کو ہم سے قریب تر کر دے، مولا کریم منزل کی طرف تمام جانے والے راستوں کو ہموار کر دے، اور ہمارے ضعف اور کمزوری کے باوجود ہم کو اپنے اوپر ایمان اور یقین سے پورے طریقے سے سرشار کر دے۔ وہیں دوسری طرف اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، جس طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح مدد فرمائی، ایک تو نصرت کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے، قلبوں کے اطمینان کے ذریعے، قدموں میں جماؤ کے ذریعے، دور اندیشی اور دور بینی کے ذریعے، جس کو آج کی اصطلاح میں ویژن کہتے ہیں، ویژنری ہونے کے ذریعے، جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طرح مدد فرمائی، وہیں ایک جماعت مومنین عطا فرمائی۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اصحاب ایمان کی طرف دیکھتے ہیں، عقیدے اور ایمان کے حوالے سے فرزندان توحید کی طرف دیکھتے ہیں، شمع رسالت کے پروانوں کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ پر مرمٹنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جماعت مومنین فی الحقیقت دشمن کے اوپر اس کا رعب قائم ہو جائے، ہر حوالے سے یہ دین کے وقار کی علامت بن جائیں، اس پر مرمٹنے کے لیے
सब कुछ निछावर करने के लिए जान हथेली पर लेकर सर से कफन बांध कर मैदान अमल में निकलने के लिए भूल भुलैयों में गुम इंसानों को शाहराए मुस्तकीम पर लाने के लिए हम ये दुआ भी करते हैं, हम दावत अल्लाह का हवाला देते हैं, हम रुजू अल्लाह की तहरीक बनने और इसके शौक़ का और अज़्म समीम का इजहार करते हैं। इसलिए दिफाए पाकिस्तान कौंसिल फिल हकीकत पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने के लिए जितने दुश्मन टेढ़ी और मैली आंखों से हमारी तरफ देखते हैं, आप भारत का नाम लें, अमेरिका और नेटो का नाम लें, चारों तरफ फैली हुई मगरबी तहजीब का नाम लें, फहाशी और उरियानी और बेहयाई के कल्चर का नाम लें, ये चारों तरफ जो दुश्मन नज़र आता है ये इस्लाम का दुश्मन है, ये कुरान और सुन्नत का दुश्मन है, ये दीन के गलबे का दुश्मन है, ये शरीयत के निफास का दुश्मन है। ये हमसे छीन लेना चाहते हैं, जज्बे जिहाद छीनना चाहते हैं, ये शब खून मारना चाहते हैं, शहादत का शौक़ और तमन्ना पर शब खून मारना चाहते हैं, ये हमको बांझ बनाना चाहते हैं। हम अपने रब की मदद से उसकी नुसरत और ताईद के नतीजे में अपने ज़ौफ़ को इंशाअल्लाह क़ुव्वत में ढलता देख रहे हैं, अपनी कमज़ोरी को अल्हम्दुलिल्लाह ताकत के अंदर ढलता देख रहे हैं। इसलिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। जब अहले कराची का नाम लिया जाता है, नेटो की सप्लाई के हवाले से सद्द राह बनने का हवाला दिया जाता है, जब अहले कराची सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मकसद की खातिर उठ खड़े हों, जब इसकी बात की जाती है तो अहले कराची आप अकेले और तन्हा नहीं हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है। हम पुश्तबानी करेंगे, 18 करोड़ लोग फर्जंदान तौहीद हाथ पे हाथ मिलाकर, हाथों को मजबूत बनाकर अपने रब की बारगाह में भी इल्तिजा करेंगे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, दुश्मन की सफ़ों में इंशाअल्लाह खलबली पैदा करेंगे अल्लाह की ताईद के नतीजे में, उसकी नुसरत के नतीजे में। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इस वर्कर्स का ये कन्वेंशन इस अज़्म का इजहार है कि इंशाअल्लाह कदम आगे बढ़ेंगे, मंजिल और निशान मंजिल की तरफ चलेंगे। और मंजिल बिल्कुल वाज़े और दो टोक है कि पाकिस्तान का जो लोग क्रियाक्रम करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान को तहलील करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान को फ़िज़ाओं में गुम करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान की आइडेंटिटी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई उनसे है और हमारे रब की, अल्लाह और उसके रसूल की लड़ाई भी उन्हीं से है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम एक बात कहना चाहते हैं, जब अमेरिका के हवाले से ताल्लुकात की उस्तवारी के लिए किसी नए प्रोग्राम पर बात हो रही है कि अमेरिका से ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाए, पूरी खारजा पॉलिसी को रिविज़िट किया जाए, रीअसेस किया जाए, रीएवैल्यूएट किया जाए, असर नौ उसको तरतीब दिया जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 11 साल के तजुर्बे ने बताया है, पिछले 11 साल का मुशाहिदा इस नतीजे को सामने ला कर रखता है। अहले दीन तो पहले भी ये बात कह रहे थे कि ये जो वार ऑफ टेरर है, दहशत गर्दी के नाम पर जो जंग छेड़ी गई है, ये हमारी जंग नहीं है, ये जंग उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ है, ये जंग हमारे नारों के ख़िलाफ़ है, हमारे फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है, हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है, हमारे अक़ीदे और ईमान के ख़िलाफ़ है। ये जंग मक्के और मदीने के ख़िलाफ़ है, हरमैन के ख़िलाफ़ है। हम पहले भी ये बात कह रहे थे, लिहाजा अमेरिका के साथ अगर फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ताल्लुकात की उस्तवारी के हवाले से अगर असर नौ गौर होना है तो इस जंग से हमको बाहर आना चाहिए। ये जंग हमने अपने ऊपर मुसल्लत की है, ये जंग अपने पैसों से हमने मोल ली है, इस जंग की खातिर हमने खसारा और नुकसान उठाया है, इस जंग की वजह से हमको पशेमानी और बेवक़ार होना पड़ा है। इस जंग से हम निकलेंगे तो इस जंग के 3 फुटनोट्स हैं, उससे भी हम निकलेंगे। इस जंग के नतीजे में मिलिट्री ऑपरेशन है, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन है, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन है। इसी जंग के नतीजे में ये ऐलान है कि हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। ये कहा जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। जब हम वार ऑफ टेरर से निकलेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन से भी निजात पाएंगे।
मिसिंग पीपल से, ये जो तलाश गुमशुदा लोग, चारों तरफ उनकी तादाद बढ़ रही है। महरूमों की दास्तानें हैं, मजबूरी और बेकसी के उन्वानात हैं। हर माएँ अपने बेटों को तरस रही, उनके इंतज़ार कर रही हैं। हर बीवी अपने शौहर के इंतज़ार में अपने हर हाल को बेहाल कर रही है। इसलिए मिसिंग पीपल का मामला वार ऑफ टेरर की वजह से है। और तीसरा फुटनोट इसका ड्रोन हमले हैं। ड्रोन हमलों से निजात नहीं मिल सकती जब तक वार ऑफ टेरर से वापस ना आया जाए। मिसिंग पीपल की तादाद न कम हो सकती, न उससे निजात मिल सकती जब तक कि वार ऑफ टेरर से वापस ना आया जाए। और ड्रोन हमले हों, मिसिंग पीपल हो या मिलिट्री ऑपरेशन हो, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। तबाही के दहाने पर नहीं, तबाही के गड्ढे के अंदर धकेल दिया है। इसलिए हमारा एजेंडा दिफाए पाकिस्तान का एजेंडा, और हम दावत देते हैं। शेख साहब ये कहते हैं कि सबसे राब्ता किया जाए, हम राब्ता कर रहे हैं, बज़बान क़ाल भी कर रहे हैं, बज़बान हाल भी कर रहे हैं, बज़बान मीडिया भी कर रहे हैं। हमारी बात सुनी जा रही है, दूर तक पहुंच रही है, दिलों को गुदगुदा रही है, दिमाग में सोच की लहरें उठा रही है। हम राब्ते में हैं तमाम दीनी जमातों से, तमाम सियासी जमातों से। हमारी ये अपील है, पाकिस्तान होगा तो तुम सियासत करोगे, पाकिस्तान बचेगा तो कोई इंतखाब होगा, उसमें तुम हिस्सा लोगे, हारोगे और जीतोगे। लेकिन पाकिस्तान अगर ख़तरे में है, हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी अगर ख़तरे में है, तो कौन सी सियासत की बात करते हो, कौन से मज़हब और दीन की बात करते हो, कौन से क़िबला और काबा की बात करते हो। तुम्हारे क़िबला और काबा ख़तरे के अंदर हैं। इसलिए यकसूई की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, मिलजुल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जितने लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं, हम में से कोई आगे आने के शौक़ में मुब्तला नहीं है। लोग तशरीफ़ लाएँ, हम उनका इस्तक़बाल करेंगे, दीदा व दिल फर्श राह करेंगे। मकासद से इत्तेफाक की वजह से, अहदाफ में यगानगत की वजह से हम उनका हाथ थामेंगे, उनके पीछे भी चलेंगे। इसलिए हम पूरी मुल्क, पूरी कौम के हवाले से जब यकजहती की बात करते हैं, तो बदरजे औला कौम के लीडर्स दौरे कर रहे हैं, सिंध के दौरे कर रहे हैं, पंजाब के दौरे कर रहे हैं, सूबे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में नज़र आते हैं। सबसे हमारी ये अपील है, बदरजे औला ये अपील उन लोगों से है कि जो इस एजेंडे से पहले से वाकिफ़ हैं, जो इस एजेंडे के पहले से हामी हैं। इसलिए मैं वर्कर्स कन्वेंशन में एक एक फ़र्द को अकेले फ़र्दन मुबारकबाद देता हूँ। आपने वक्त और हालात की नज़ाकत को समझा है, आपने नविश्ते दीवार को पढ़ा और दूर तक फैलाया और पहुँचाया है। आपने मामलात की संगीनी को, उसकी नज़ाकत को और उसके अंदर पिन्हा जो तूफ़ान है, उनसे लोगों को आगाह किया है। इस काम को जारी रखिए, इसको राब्ता अवाम कहते हैं। उनके दिलों को गुदगुदाइए, हालात की संगीनी का इदराक उनके दिलों में रस की तरह घोल दीजिए और उनको अपने साथ लाकर खड़ा कीजिए। ये सिर्फ कारकुनों का काम नहीं है, लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ पीपल कराची के निकलेंगे। तो मुझे उम्मीद है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू निप इट इन दी बड, जहाँ से ये कारवान इनका शुरू होगा, नेटो की सप्लाईज जहाँ से शुरू होंगी, इंशाअल्लाह वहीं पर ख़त्म भी हो जाएंगी। और मैं फिर दोहराऊँ कि जब आप ये काम इंशाअल्लाह कर लेंगे, तो ये काम आप नहीं करेंगे, आपका रब करेगा। नाम आपका होगा, नारे आपके होंगे, कदम आपके चलते बढ़ते उठते हुए नज़र आएंगे। लेकिन रब की मदद के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इत्तिबा और पैरवी के नतीजे में उनकी सुन्नतों को अपनाया जाए, उनकी शरीयत का खूगर बना जाए। वो जिस जद्दोजहद और कशमकश को हमारे दरमियान छोड़ गए हैं, जिस जज्बे जिहाद और शहादत की बात करते करते वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत का खूगर बना जाए। इसी के अंदर कामयाबी, इस जहान की कामयाबी भी उस जहान की कामयाबी भी है। मैं तमाम कायदीन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े शरह व बस्त के साथ तमाम मामलात को आपके सामने रखा है और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफार्म को मजबूत करने में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़दाश्त नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल